Hello everyone, welcome to Simran IES Academy. Today we'll do the daily editorial analysis of the topic ban on single-use plastic. Okay, so this topic has been in news recently because the central government has announced that it will ban the single-use plastic from 2022. Okay, so it is this analysis is based on an article published in the Indian Express. Okay, and this is useful for both the UPSC CSC prelims and mains, GS paper 2 and also for GS paper 3. Okay, so now you will see the original article published in the Indian Express. Center bans single-use plastic from 2022. From September 30, polythene bags under 75 microns won't be allowed. From December 31 next year, those under 120 microns will be banned. Okay, so chopping block. So ये सारे items जो हैं ये सारे ban कर दिए जाएंगे next year से. Plastic items such as the following are set to be banned from next year: cutlery, straws and stirrers, earbuds, balloon sticks, flags, ice creams and candy sticks, wrapping film around sweet boxes, cigarette packets, invitation cards, plastic or PVC banners less than 100 microns, थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, ये सबको जो है बैन कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर से. ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि द सेंटर हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक बिगिनिंग जुलाई नेक्स्ट ईयर. द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री थर्सडे नाइट रिलीज्ड अ ड्राफ्ट गैजेट नोटिफिकेशन दैट अनाउंस्ड द बैन एंड स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम द आइटम्स वुड फॉल अंडर इट्स परव्यू: cutlery, earbuds and ice cream sticks among others. The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of single-use plastic including polystyrene and expanded polystyrene commodities shall be prohibited with effect from 1st July 2022, says the ministry notification on the Plastic Waste Management Amendment Rules 2021. Polythene bags with thickness less than 50 microns are already banned in the country. ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं हम. ठीक है, देख लेते हैं कि वाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज करेंटली. वही कि द सेंटर हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक बिगिनिंग जुलाई नेक्स्ट ईयर. द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इन a gazette notification has announced the ban on single use plastic including cutlery, earbuds and ice cream sticks among others. Gazette notification mentions the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of single use plastic shall be prohibited with effect from 1st July 2022. ओके, सो पॉलीथीन बैग्स विद थिकनेस लेस देन 50 माइक्रॉन्स जो है ये ऑलरेडी बैंड है कंट्री के अंदर. ये जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर जो पॉलीथीन बैग्स लेस देन 50 माइक्रॉन्स थिकनेस के हैं ये ऑलरेडी बैन हो गए हैं कंट्री के अंदर. अब 30 सितंबर 2021 से from 30 September 2021, the polythene bags under 75 microns will also not be allowed. Or from December 31 next year, polythene bags under 120 microns will be banned. तो अब देख लेते हैं हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते क्या हैं. ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक कुछ नहीं है, बस जो इनका नाम है वही है, इनका जो है काम है, एक बार ही जो है यूज होते हैं केवल, फिर इनको फेंक दिया जाता है. ठीक है, तो इंडिया डिफाइंस सिंगल यूज प्लास्टिक एज डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स यूज्ड एंड थ्रो आइटम्स दैट आर कॉमनली यूज्ड for packaging and include items intended to be used only once before they are thrown away or recycled. These include items such as carry bags, food packaging, bottles, straws, containers, cups and cutlery. It has been found everywhere. That is right from It has been found everywhere, that is right from the depth of the ocean to the peaks of the Himalayas. They accumulate in the water bodies and choke the drains which lead to फ्लड्स. ठीक है, ये जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं वाटर बॉडीज में और इससे जो है फिर फ्लड्स होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है थ्रेट क्यों है असल में. ठीक है, तो सिंस सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, सो दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड पोल्यूट द लैंड एंड वाटर. तो ये जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते हैं और ये लैंड और वाटर दोनों को ही पोल्यूट कर सकते हैं. और केवल 1 to 3% ऑफ 13% ऑफ द प्लास्टिक आइटम्स आर रिसाइक्लेबल. बाकी जो है 87 से लेके 99% तक जो प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता और वो कई हजारों
सालों तक, कई सौ हजारों सालों तक जो है अपने एनवायरनमेंट में बने रहते हैं और वो पोल्यूशन जो है कॉज करते रहते हैं। और अगर वो मैरीन एनवायरनमेंट में चले गए तो वो जो एक्वेटिक जो अपनी लाइफ एक्वेटिक लाइफ है, जो मैरीन जो पॉपुलेशन है, उसके लिए भी एक थ्रेट बन जाते हैं। ठीक है, द रेस्ट इवेंचुअली रीच द ओशंस एंड सीज थ्रू वाटर बॉडीज, thus threatening the aquatic life. So their production is very energy intensive and they also require lot of water for their production. ठीक है, तो इससे जो है वाटर डिप्लीशन के चांसेस भी जो है एनहांस हो जाते हैं और क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव होती है तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट के थ्रू इनको एनर्जी मिल रही है तो बहुत ज़्यादा कोल का जो यूज़ है वो भी जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए इनका रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम प्लास्टिक बैग्स कैन डैमेज द ब्लड एंड टिश्यूज एंड कैन ऑल्सो lead to cancers, birth defects, impaired immunity, hormone changes, endocrine disruption and other serious ailments. तो ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं इनसे जो टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा कई जगह प्लास्टिक बैग्स को या प्लास्टिक जो आइटम्स उनको जला दिया जाता है, तो उससे जो टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं उससे जो है बहुत ज़्यादा तरीके के जो है इश्यूज, एलिमेंट्स बॉडी के अंदर हो सकते हैं क्योंकि वो डैमेज कर देते हैं ब्लड को और टिश्यूज को, और उससे जो है कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी हो सकती है, हार्मोन चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है और बाकी दूसरे भी जो है सीरियस एलिमेंट्स हो सकते हैं उससे। ठीक है, अब देख लेते हैं गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। सबसे पहले देख लेते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। तो उसने क्या करा था, इट इंक्रीज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स फ्रॉम 40 to 50 माइक्रोन्स। तो अभी जो 50 माइक्रोन्स तक के प्लास्टिक बैग्स इंडिया के अंदर बैंड हैं वो इसी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की वजह से है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंडर ही जो थिकनेस है, मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की, उसको 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन्स कर दिया गया था। और उसने जो है एक्सपेंड करा द जुरिसडिक्शन ऑफ एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम द म्यूनिसिपल एरियाज टू रूरल एरियाज। अभी तक क्या था कि जो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो पुराने वाले थे वो केवल म्यूनिसिपल एरियाज तक ही एप्लीकेबल थे, पर इस लॉ ने क्या करा, इसने उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की उसको म्यूनिसिपल एरियाज से एक्सपैंड करके उसको रूरल एरियाज तक भी जो है वो ले गया, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर भी प्लास्टिक्स का जो है बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां पर भी प्लास्टिक्स जो है सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक आइटम्स के यूज को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिर इसने इंट्रोड्यूस करा द क्लॉज ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द प्रोड्यूसर्स एंड जनरेटर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड बाय देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो जनरेटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं प्लास्टिक वेस्ट के, उनको जो है रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए अपने प्लास्टिक वेस्ट का एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी क्लॉज लाया गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर ही पूछा गया था कि द क्लॉज ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके अंदर एक ऑप्शन था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो वही उसका जो सही आंसर था। इसलिए जो है आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है बहुत प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर, तो वो एनालिसिस पूछता ही है। ठीक है, तो फिर दिस इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए एक फीस जो है मिनिमल ली जाएगी, ये भी प्रोविजन इसके अंदर डाला गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर। ठीक है, और ये प्रमोट करता है यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर प्लास्टिक वेस्ट का यूज को जो है एनहांस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी ये जो है सिंगल यूज, ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है इसके अंदर प्रोविजन हैं। फिर है इसके अंदर एक क्लॉज है ऑफ पेमेंट ऑफ यूजर चार्जेस टू इंटरेस्ट मोर रिस्पांसिबिलिटी ऑन द वेस्ट जनरेटर्स। ठीक है, जो है यूजर चार्जेस भी लिए जाएंगे, जो वेस्ट जनरेटर्स हैं उनसे जो है यूजर चार्जेस लिए जाएंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ताकि जो है उनको जो है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है और ज़्यादा एनहांस किया जा सके वेस्ट जनरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फिर गवर्नमेंट के और दूसरे इनिशिएटिव देख लेते हैं। अभी आया है ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021। तो ये जो है प्रपोज करता है टू बैन द मैन्युफैक्चर, यूज, सेल, इंपोर्ट एंड हैंडलिंग ऑफ सम सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। इट विल ऑल्सो अप्लाई टू मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग इन्वॉल्व्ड extensively in e-commerce and delivery services. They shall apply to every waste generator, local body, gram panchayat, manufacturer, importers, producer, brand owner and plastic waste processor. तो इसी के अंदर जो है
30 सितंबर 2021 तक जो मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक अपने बैग्स की, उसको बढ़ा के 50 mm से बढ़ा के 70 mm कर दिया गया है। और फर्दर उसको 120 mm भी इसी लॉ के अंदर, इसी रूल्स के अंदर, ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसी के थ्रू जो किया जाएगा। और थर्मोसेट प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक विल आल्सो फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021। तो द ड्राफ्ट इज प्रपोज्ड to be implemented in 3 stages starting this year and eliminating the single use plastic in mid 2022। तो ये जो है इस जो ये ड्राफ्ट रूल्स हैं 2021 के, इनको 3 स्टेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा और मिड 2022 तक ये सारे जो है एलिमिनेट कर देगा सिंगल यूज प्लास्टिक को। ठीक है, फिर देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रही है एक प्लास्टिक हैकेथॉन टू डिस्कस ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इट्स कलेक्शन एंड व्हाट न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट। ठीक है, तो प्लास्टिक हैकेथॉन 2021 हो रहा है। इसके अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वहाँ पे इनवाइट किया गया है ताकि जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोविजंस हैं, कि जो अपने सॉल्यूशंस हैं उनको और ज़्यादा एनहांस किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, और उससे जो है प्लास्टिक से और क्या नए प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं उसके बारे में भी जो है अच्छे तरीके से डिस्कशन किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है प्लास्टिक हैकेथॉन 2021। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर डेवलपिंग एडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सॉलिड एंड वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू द स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सपोर्ट स्टेट्स को फॉर डेवलपिंग एडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सॉलिड और वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और स्टेट्स यूटीज हैव बीन रिक्वेस्टेड टू कंस्टिट्यूट अ स्पेशल टास्क फोर्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए और स्पेशल जो है उसको जो है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट्स को और यूटीज को जो है रिक्वेस्ट किया गया है कि वो एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है अपना एक अपॉइंट करें और एक नेशनल लेवल टास्क फोर्स भी जो है कंस्टिट्यूट करी गई है फॉर टेकिंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू एलिमिनेट आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। और एक 2 month लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स 2021 हैज आल्सो बीन ऑर्गेनाइज्ड। एक 2 महीने लंबा जो है एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर। ठीक है, आप देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट are now the governments, both central and state governments are using plastics for road surfacing and highway construction। ठीक है, तो हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए और रोड सर्फेसिंग के लिए भी जो है प्लास्टिक का यूज जो है एनहांस किया जा रहा है। और प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इन हाउसेज बिल्ट अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके अंदर प्लास्टिक के यूज को जो है एनहांस किया जा रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री हैज बैंड द यूसेज ऑफ सिंगल use plastic in all railway stations including inside trains from 2 October 2019। 2 अक्टूबर 2019 से जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसने जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उनका सबको बैन कर दिया है रेलवे स्टेशन के अंदर और ट्रेन के अंदर भी। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि फिर है कि भाई अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड हमें और क्या करने की जरूरत है। तो बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स करने की जरूरत है विद फोकस ऑन सेग्रीगेशन इंसेंटिव मॉडल्स बी डिवाइज्ड एज पर द नीति आयोग रिकमेंडेशंस कैन हेल्प अचीव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। ठीक है, अगर हम बेटर तरीके से जो है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को डेवलप कर पाए विद फोकस ऑन सेग्रीगेशन इंसेंटिव मॉडल्स, ठीक है, और बेहतर तरीके से हम जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कर पाए through the incentives, through providing incentives as per the guidelines of the नीति आयोग, तो जो है हम अपने जो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स है, लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट्स हैं उसको जो है हम अचीव कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है उसको हम जो है लॉन्ग टर्म में हम देख पाएंगे। ठीक है, फिर कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ लिटरिंग सिंगल यूज प्लास्टिक बी एनहांस्ड थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक मन की बात। ठीक है, मन की बात इनिशिएटिव्स जैसे के थ्रू जो है जो सेंटर कंज्यूमर अवेयरनेस है अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वो जो है एनहांस करने की जरूरत है। और प्रमोट ऑल्टरनेटिव्स लाइक कॉटन, खादी बैग्स एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। फिर है प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू एनकरेज द अपटेक ऑफ इको फ्रेंडली एंड फिट फॉर पर्पस ऑल्टरनेटिव्स दैट डू नॉट कॉज हार्म। सच सपोर्ट कैन इंक्लूड टैक्स रिबेट्स,
research and development funds, technology incubation, public-private partnerships, and support to projects that recycle single-use items and turn waste into a resource that can be used again. तो ये जो support है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का फॉर द अपटेक ऑफ इको फ्रेंडली एंड फिट फॉर पर्पस ऑल्टरनेटिव्स, इसको जो है सपोर्ट करने की जरूरत है। जो है हम दे सकते हैं इसके अंदर टैक्स रिबेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इसमें एनहांस किया जा सकता है और सपोर्ट किया जा सकता है थ्रू प्रोजेक्ट्स दैट रिसाइकल सिंगल यूज प्लास्टिक एंड टर्न वेस्ट इनटू अ रिसोर्स, वेस्ट टू वेल्थ जनरेशन that can be used again। और वे फॉर्मूला लेते हैं, reduce or abolish taxes on the import of materials used to make alternatives of single use plastic, provide incentives to plastic industry by introducing tax rebates or other conditions to support its transition, use revenues collected from taxes or levies on single use plastic to enhance the waste management system। तो अपना जो टैक्सेस और लेवीज आ रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर, उसको जो है यूज करो टू एनहांस द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, प्रोवाइड बेटर इंसेंटिव्स टू स्टार्टअप्स दैट क्रिएट जॉब्स इन द प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेक्टर, encouraging and create awareness about प्लॉगिंग थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक मन की बात। तो प्लॉगिंग क्या होती है, अगर हम जो है पैदल चल रहे हैं रोड पे तो हमें जो भी कूड़ा दिखे, प्लास्टिक वेस्ट दिखे, उसको हम जो है कलेक्ट कर लें और उसको सही जगह पर जाके उसको जो है डिस्पोज कर दें। तो इसको भी जो है प्रमोट करने की जरूरत है थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक मन की बात। तो एंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एंड ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021। अब देख लेते हैं कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इस मैटर के ऊपर। तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैव बीन बैन्ड इन सिटीज लाइक शिकागो एंड वॉशिंगटन। दिस शोज दैट सच इंटरवेंशंस कुड बी effective in shaping behavior changes. The European Union is in the process of making new laws to ban single-use plastic products like straws, cutlery, etc. So India can learn from the experiences of such countries, such nations. Countries such as US, Canada, and Netherlands have imposed strict regulations to prevent the use of microbeads in personal care products. अब microbeads क्या होते हैं? They are a category of microplastics having size smaller than 5 mm in size. They are used in cosmetic products mainly. They are a serious cause of marine pollution. Okay, so I hope that through this analysis you will be able to better understand and enhance your knowledge about the single use plastics, and also this topic is very important both for UPSC CSC prelims and mains, especially for mains, because the government has set a target for eliminating single use plastics by 2022. So a question can be asked in mains from this topic, and also an essay can come. Okay, so prepare accordingly, and I hope that through this analysis you will be able to handle all such types of questions asked from this topic in both UPSC CSC prelims and mains. Thank you for watching this analysis, and apart from this, if you want to better enhance your knowledge and better learn about the complex topics of various static and current topics, then you can refer to the Learn by Maps initiative of the Simran IAS Academy. What they do, they use extensively use the flowcharts information diagrams and infographics etc. to make the complex topics very easier to understand. So you will be able to better understand complex topics with the help of the Learn by Maps initiative, as we also use the mind maps approach also. So you can check the description and contact the Simran IAS Academy for further information. Thank you.